تو اس نے تقریباً 7.5 لاکھ جو وفاقی حکومت کے امپلائیز ہیں ان کو گھر بھیج دیا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ان کو تنخواہ دینے کے اور ان سے کام کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جب سے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو خطے کے ملک ہیں اور دنیا کے ملک ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں۔ جی جب تک حماس اور اس کی جو ایسی شاخیں ہیں جو کہ ایسی کارروائیوں میں ملوث رہی ہیں جن کو باقی دنیا دہشت گرد کارروائیوں کے طور پر دیکھتی ہے، امریکہ دہشت گرد کارروائیوں کے طور پر دیکھتا ہے، جب تک ایسی تنظیمیں جو کہ اس معاہدے میں بھی لکھا گیا ہے کہ وہ ہتھیار پھینک نہیں دیتی، ایسی کارروائیاں ترک نہیں کر دیتی، تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ووٹرز آن این ایوریج جی جی جو کہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کے حق میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ حق اور اختیار ہے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے کرے کیونکہ اس کو خطرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، بہت بڑی صورتحال، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ گزشتہ روز ہوئی، گزشتہ سے پیوستہ روز انفیکٹ ایک 20 نکاتی امن منصوبہ اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد گزشتہ روز پاکستانی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ کس طرح سے یہ منصوبہ جو ہے وہ تشکیل پایا، اور کس طرح سے 8 عرب اور اسلامی ممالک کے جو وزرائے خارجہ تھے اور جو سربراہان تھے انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد تجاویز جو ہیں ان کا تبادلہ ہوا، اور پھر یہ معاہدے کی شکل میں یہ چیز آئی۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، نہ صرف عالمی امن کے حوالے سے بلکہ مشرق وسطیٰ کے امن کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عاطف صاحب، وائس آف امریکہ کے کورسپونڈنٹ ہیں، اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مائی پلیزر، تھینک یو فیصل۔ عاطف صاحب، سب سے پہلے تو اس امن معاہدے پر آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، امریکہ میں یہ کیا سر ہو رہا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، اور کیا اس کی وجوہات ہیں، اور کتنا یہ امپیکٹ کر رہا ہے وہاں پہ لائف کو؟ فیصل، ان سمپل ورڈز اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بجٹ پر اگریمنٹ نہیں کر سکے۔ ہوں ہوں بجٹ کو سینٹ سے پاس کرنے کے لیے جتنے ووٹ درکار تھے وہ ووٹ حکومت حاصل نہیں کر سکی، جی اس لیے بجٹ پاس نہیں ہو رہا۔ اس کا حل امریکہ کے سسٹم میں اس طرح نکالا جاتا ہے، اور امریکہ میں بجٹ کا پاس نہ ہونا اب ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ ہوں اس کا حل اس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم سپینڈنگ بلز پاس کر دیے جاتے ہیں، یہاں کی زبان میں اس کو کنٹینیوئنگ ریزولوشن کہا جاتا ہے۔ جی جی یعنی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ حکومت جتنا خرچہ پچھلے بجٹ کے ذریعے حاصل کر رہی تھی اس کو اتنا ہی خرچہ ملتا رہے گا، ہوں لیکن کوئی نئے فنڈز ایڈ نہیں ہوں گے، اس کو سی آر کہا جاتا ہے۔ جی جی جب اسپینڈنگ بل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ کچھ محکموں کے اندر اس کو کرٹیکلی فنڈز کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو اہداف ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں، اور اس پہ دونوں پارٹیاں متفق ہو جاتی ہیں۔ جیسے عام طور پر ڈیفنس کے شعبے میں اور ہیلتھ کے جی جی شعبے میں اس ہوں قسم کے بلز پاس کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی پاس نہیں ہو سکا۔ دونوں ہوں جماعتوں نے کوشش کی کہ ایک 3 ہفتے کا مختصر سپینڈنگ بل پاس ہو جائے، لیکن وہ بھی پاس نہیں ہو سکا، اور نتیجتاً گزشتہ رات 12 بجے کے بعد امریکہ کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس اخراجات کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے، کیونکہ بجٹ پاس نہیں ہوا۔ تو اس نے تقریباً 7.5 لاکھ جو وفاقی حکومت کے امپلائیز ہیں ان کو گھر بھیج دیا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ان کو تنخواہ دینے کے اور ان سے کام کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جی مختصر یہ ہوا ہے۔ جی عاطف صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ دراصل میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ امریکن گورنمنٹ جو اس وقت ایک مڈل ایسٹ کے امن کے لیے گارنٹر کے طور پہ سامنے آئی ہے، تو وہاں پہ کیا حکومت کو خطرہ تو نہیں اس وقت؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا فیصل، چونکہ حکومت کے کچھ جو اسینشل ادارے ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہونے کے باوجود کام کرتے رہتے ہیں۔ اسینشل اداروں میں جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ یقیناً وائٹ ہاؤس ہے، جی اس کے بعد کانگریس ہے،
फिर स्टेट डिपार्टमेंट है, फिर हम्म, डिफेंस डिपार्टमेंट है। स्टेट डिपार्टमेंट के सभी लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोग वहाँ काम करते रहेंगे, क्योंकि ये जो इदारे हैं, इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको इसेंशियल इदारे कहा जाता है, यानी जिनका काम किसी सूरत नहीं रुक सकता। तो जी। ये डिप्लोमेसी में व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, और इन दोनों पर ये जो शट डाउन है ये लागू नहीं होगा। वो लोग जो कि ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं, जिनका काम रोजाना की बुनियाद पर होना चाहिए, उनके लिए एक प्रोविजन होती है जिसमें उनके सुपरवाइजर्स उनको नॉमिनेट कर देते हैं कि ये लोग जो हैं इनको फरलो नहीं किया जा सकता, जी। ये लोग किसी भी सूरत में काम करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ इसहाक डार साहब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से जो 8 अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनके जो सरबराहान थे, वज़राए ख़ारजा भी थे, उन्होंने एक मुशावरत की, फिर सदर ट्रंप से मिलने की दरख्वास्त की, फिर मुलाकात हुई, जिसके बाद तजावीज़ का तबादला हुआ। और उसके बाद ये हमारे सामने ये जो 20 नकाती मंसूबा है वो सामने आया, और अभी भी खैर हतमी तो वो नहीं है, उसे मुजव्वज़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसकी खतमी मंजूरी नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के लिए ये कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि इस 20 नुकाती जो अमन मुआहदा पेश किया जा रहा है, इसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि सबसे पहले तो ये कि जंग बंदी होगी। जी। जंग बंदी के जो पॉइंट्स हैं या जंग बंदी के जो मराहिल हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं, और जो प्रिजनर एक्सचेंज होना है, इसके अलावा जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की हलाकतें हो गई जिनकी कैद में, जी। उनकी बॉडीज़ या उनकी बाकियात वापस करना है, ये सब कुछ जूं ही हो जाता है तो गजा के लिए इमदाद बहाल कर दी जाएगी। तो हम्म। ये इस लिहाज से तो एक बड़ी कामयाबी है कि जो इमीडिएटली जो चीजें होनी है उसमें जाहिर बात है, हम्म। अ, अ, हर कोई ये चाहता है कि गजा के ऊपर बमबारी बंद हो। हम्म। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन गजा के रिहायशियों के लिए ये एक बहुत बड़ी फतह होगी कि उनको अब हम्म। बमबारी का, गोलियों का, मिसाइलों का खतरा नहीं होगा। आतिफ साहब, थोड़ा सा मैं इंटरजेक्ट करूंगा इसमें, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह से भी हमने देखा कि नेतन याहू साहब जो थे वो इसको रेजिस्ट कर रहे थे, इस माहिदे को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया और तमाम मुल्कों को साथ लेके जिस तरह से एक मूवमेंट की, आप पाकिस्तान के हवाले से ज़रा बताइएगा कि मतलब क्या ये एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान इज एमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, कि जिसकी बात सुनी जाती है, इनको मौका दिया गया तजावीज़ मुरतब करने का, फिर निगोसिएशन का। क्या इसमें क्या पाकिस्तान की अहमियत सामने आती है इस सारे प्रोसेस के दौरान? जी, ये अहमियत इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, जी। और इसके अलावा और कोई अहमियत बज़ाहिर नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान एक तो ये कि उस रीजन से बाहर है। जी। जी। सेकेंडली, पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो रजा गजा की रिकंस्ट्रक्शन में कोई किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान खुद कर्जे लेकर चलता है। जी। तीसरा ये कि अगर पाकिस्तान का कोई रोल इसके अंदर बनता है तो वो यही बनता है कि जब गजा में एक इंटरम सिक्योरिटी सेटअप कायम किया जाएगा, हम्म। जिसको आईएसएफ का नाम दिया गया है, जी। जी। जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, उसमें भी जो लीडिंग रोल है वो जॉर्डन, इजिप्ट और अमेरिका के पास है। हम्म। अ, लेकिन जाहिर बात है, अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो उस पर जो अंदर खाने बातचीत हुई है उसमें ये हुई है कि एक इंटरनेशनल फोर्स तैयार की जाएगी। और जी। जी। पाकिस्तान की जो फौज है वो चूंकि एक बहुत मयारी फौज है, एक ट्रेंड फोर्स है, जंगों और लड़ाइयों के लिए तैयार फोर्स है, और एक प्रोफेशनल फोर्स है, तो इसलिए पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर बज़ाहिर नजर आता है। और दूसरा ये कि जब से ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है, उसके बाद जो खत्ते के मुल्क हैं और दुनिया के मुल्क हैं, उनको भी ये पता चल गया है कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं। जी। और अगर पाकिस्तान तैयार है अपने सबसे बड़े अरब इत्तेहादी की हिफाजत के लिए, और जी। उनके साथ
एक जॉइंट ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है जो कि नेटो की तर्ज का एक एग्रीमेंट है। तो यकीनन ये एक सिग्नल देता है कि इसराइल को उस खत्ते के अंदर अपनी कार्रवाइयां जो हैं अब सोच समझ कर करनी होंगी। इसराइल के लिए ये बात थोड़ी सी परेशान कुन है कि पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल उसके बॉर्डर्स के साथ आकर बैठ जाएंगी। हम्म। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हमें आगे चलकर देखना होगा। और आपने जो शुरू में कहा ना कि जो इजरायली वजीर आजम हैं, उनके बयानात इससे मुतजाद नजर आते हैं। वो ऐसा करते हैं, वो हम्म। अमेरिका आते हैं, वो सदर ट्रंप के साथ बातचीत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सदर ट्रंप जो कुछ कहते हैं उस पर कोई बात नहीं करते। लेकिन जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं, चूंकि उनकी हुकूमत में इंतहाई दाएं बाजू की जमातें शामिल हैं, कंजर्वेटिव कदामत पसंद जो जमातें हैं वो शामिल हैं, जो समझती हैं कि ये पूरा जो खत्ता है जिसमें शाम भी आता है, लेबनान भी आता है, ये पूरा खत्ता इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल इस पर कायम होना चाहिए है। तो जब वो वहां जाते हैं तो उनको इस किस्म के पॉलिटिकल मसाइल का सामना होता है अपने इत्तेहादी जमातों की तरफ से, और वो उनको खुश करने के लिए ये कहते हैं कि हाँ, मैं तो फ़लस्तीनी एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में बिल्कुल नहीं है। और शायद वो ऐसा हो भी कि वो ना चाहते हों कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो। और अभी फ़िलहाल चूँकि इसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के फौरी क़याम की कोई बातचीत नहीं की गई है, ये एक प्रोसेस है जिसमें और बहुत से स्टेप्स हैं, और जाहिर बात है इसमें काफ़ी अरसा लगेगा। इसलिए शायद उनके लिए फ़िलहाल ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इसराइल के अंदर। उन पर केसेस चल रहे हैं, लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं, बड़े मुजाहरे हो रहे हैं उनके खिलाफ। और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हिमायत करती हैं, वो गज़ा के ऊपर कब्ज़े की हिमायत करती हैं, वो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्ज़े की हिमायत करती हैं। तो इसलिए जो इजरायली वजीर आजम हैं, उनकी जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं, उन पर ज़ाहिरी बात है दुनिया में कहीं भी ज़्यादा एतबार नहीं किया जाता। और उसकी वजूहात उनके जो इक़दामात हैं माजी के वो हैं, उनके जो बयानात हैं, जैसे उन्होंने भी अभी कहा कि मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि मैं एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनने दूंगा। तो ये चीज़ें डैमेज करती हैं न सिर्फ इसराइल को, प्रेसिडेंट नेतन्याहू की जो कमिटमेंट्स हैं उनको, बल्कि किसी हद तक मुझे लगता है कि अमेरिका में ये सदर ट्रंप की और उनके ऑफिस की और वाइट हाउस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी चैलेंज करती हैं कि वो यहाँ आते हैं, सदर ट्रंप एक ऐलान कर देते हैं कि ये एग्रीमेंट होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो वापस जाकर अपने मुल्क में उससे एक मुतजाद बयान दाग देते हैं। जी। अच्छा, आतिफ भाई ये बताइएगा कि आपको याद होगा कि ईयर 2000 में सेकंड इंतिफादा शुरू हुआ फ़लस्तीन के अंदर, जिसके बाद एक क्वार्टेट बनाया गया 2002 में मैड्रिड के अंदर, जिसमें यूएन भी था, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी थी, अमेरिका, रशिया और टोनी ब्लेयर साहब जो थे, ये 97 से लेके तो 2015 तक उस क्वार्टेट के खसूसी नुमाइंदे रहे हैं, स्पेशल एनवॉय रहे हैं। इतना बड़ा अरेंजमेंट जो था, जिसमें आप देखें यूरोपीय यूनियन भी है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी है, अमेरिका भी है, रशिया भी है, जो चार फरीकी एक बनाया गया, एक महाज बनाया गया कि फ़लस्तीन के मामले में अमन कायम करने के लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो काम नहीं कर पाया। इस दफा आप क्या समझते हैं कि ये जो अमन माहिदा और ये जो इंतजाम किया जा रहा है, क्या ये वहां पर अमन की गारंटी दे सकता है? देखिए, इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता नेचुरली, जब तक हमास और उसकी जो ऐसी शाखें हैं जो कि ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस रही हैं जिनको बाकी दुनिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के तौर पर देखती है, अमेरिका दहशतगर्द कार्रवाइयों के तौर पर देखता है, जब तक ऐसी तंजीमें, जो कि इस मुआहदे में भी लिखा गया है कि वो हथियार फेंक नहीं देती, ऐसी कार्रवाइयां तर्क नहीं कर देती, तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म। दूसरी तरफ इसराइली अफवाज के ऊपर भी ये पाबंदी लागू होगी कि वो किसी किस्म की वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो हम्म। वहाँ के शहरियों के ऊपर गोलीबाजी नहीं करते, वो वहाँ कोई इस किस्म का इकदाम नहीं करते जिससे गजा के शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो। और जो लाइंस तय की गई हैं वो उन लाइंस पर वापस जाते हैं, उन हम्म। एरियाज में वापस चले जाते हैं जो मुआहदे के मुताबिक उनको फॉलो करने हैं। हम्म। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक तो मामला ठीक रहेंगे। हम्म। लेकिन
اس سے ہٹ کر کچھ کام ہوگا تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو بس ایک موقع چاہیے ہوتا ہے جس کے بعد وہ آؤٹ آف پروپورشن کارروائیاں کرتے ہیں وہاں پہ. جی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں سے اگر غزہ سے فلسطینی جو ہیں وہ بھی کوئی وائلنس کرتے ہیں یا کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں جس سے اسرائیلیوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا جو جواب اسرائیلی فورسز دیتی ہیں وہ آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے. تو اس بالکل. میں ایک نقطہ یہ بھی دیکھنے والا ہے کہ اگر کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جائے گا. یعنی بالکل. وہاں جو آئی ایس ایف موجود ہوگا وہ فورسز کیا اس کی ذمہ دار ہوں گی کہ وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر اور اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر کوئی کارروائی نہ ہونے دیں, یا آئی ایس ایف صرف نام کے طور پر وہاں موجود ہوں گی. تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے کہ آئی ایس ایف کن ممالک کی فوج پر بنائی جائے گی, اس کا نگران کون ہوگا, کیا اس کا نگران اقوام متحدہ ہوگا, کیا اس کا نگران عرب اتحاد ہوگا, کیا اس کا نگران کوئی ایک علیحدہ سے اتحاد بنایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر مزید معلومات حاصل ہوں گی, لیکن یہ گارنٹی دینا مشکل ہے کہ یہ امن کتنے عرصے تک قائم رہ سکے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کتنی سیریس ہے اس مرتبہ بہتر فنکشن کرنے کے لیے. دیکھیے پیلسٹینین اتھارٹی کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. ایک تو ان کی جو اپنی فنکشننگ ہے اس کے اوپر الزامات ہیں. انہوں نے 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انتخابات نہیں کروائے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کویسچنیبل ہے. بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی از کرپٹ, وہ پیسہ جو آتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کو خرچ کرنے کے بجائے وہ اس کو اپنی عیاشیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی زیادہ ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی, زیادہ شفافیت دکھانی پڑے گی, اپنے اسٹرکچر کو ڈیموکریٹک بنانا پڑے گا, الیکشنز کروانے پڑیں گے, اور اس معاہدے کے تحت ان کا جو کردار ہے اس پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. اچھا عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ رونما ہوا. روزانہ وہ ہو رہا ہے. معصوم بچے مارے جا رہے ہیں, عورتیں ماری جا رہی ہیں. کوئی کسی ہیومن رائٹس کی جو نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ان کسی ایک کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا اسرائیل کی جانب سے. آپ امریکہ میں لوگوں سے آپ ملتے ہوں گے, امریکن پریس میں آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے. کیا وہاں کے عوام اور وہاں کا جو پریس ہے وہ اس حوالے سے اویئر ہے, اور وہ کیا اپنی حکومت کو رسپانسبل سمجھتا ہے اسرائیلی بیکنگ کے لیے؟ دیکھیے امریکہ اسرائیل کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. جی. جی. امریکن پالیسی یہ ہے. ہوں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہاں کی پالیٹکس پہ اے پیک کا انفلوئنس ہے. ہوں. ہوں. وہ صدر کے انتخاب سے لے کر اسٹیٹس میں جو چھوٹے چھوٹے الیکشنز بھی ہوتے ہیں ان تک فنڈنگ دیتی ہے, اور سب سے بڑا انفلوئنشل پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے امریکہ کے اندر اے پیک. ہوں. جتنے نئے اراکین کانگریس منتخب ہو کر آتے ہیں, چاہے وہ لوور ہاؤس کے ہوں یا اپر ہاؤس کے ہوں, ان میں سے زیادہ تر اے پیک کی فنڈنگ لیتے ہیں اپنی کیمپینز کے لیے. جب وہ ہوں. منتخب ہو جاتے ہیں تو اے پیک ان کو اسرائیل لے کے جاتی ہے ایک ٹور پہ. ہوں. تو ہوں. اس لیے پالیسی میکنگ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم آوازیں اٹھتی ہیں. ہوں. دوسری چیز ہے کہ امریکنز نے ایک عرصے سے اسرائیل کو ایک مظلوم قوم کے طور پر دیکھا ہے, جن کے ہوں. ساتھ زیادتیاں ہوئیں, جن کے خلاف جینوسائیڈ ہوا, جن کو پھر ایک لینڈ دیا گیا اور اس لینڈ کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت بنائی. پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں عربوں نے اسرائیلیوں کے سے علاقے واپس لینے کی کوششیں کی. امریکہ نے اس کی مدد کی. امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر اس خطے میں اسرائیل ہے, چونکہ مسلم ممالک سے امریکہ کی پارٹنرشپ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکی. ایک جی. ایسی جی. پارٹنرشپ جس کو ایسی پارٹنرشپ کہا جا سکے جو کہ ایک مضبوط پارٹنرشپ ہو, جس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ملکوں کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں, بٹ دیر از اے ڈویژن فیصل, اور ہوں. وہ ڈویژن ہے ووٹرز کی. 30 سال 35 سال یا اس سے کم عمر کے جو ووٹرز ہیں وہ اس کیٹیگری میں اب آنا شروع ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل کی غیر یہ جو مشروط حمایت ہے اس کو بند کرنا ہوگا. ہوں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے. جی. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو
जंगी जराइम के मुर्तकब हो रहे हैं, जी जी। जो ये समझते हैं कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस, जिनको आईडीएफ कहा जाता है, वो जंगी जराइम की मुर्तकब हो रही हैं। हम्म। उसके अलावा एक जो ग्रुप ऑफ वोटर्स है जिनको हम बेबी बूमर्स कहते हैं, जी जी। यानी वो लोग जो कि अब 60-70 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं या बिल्कुल। 50 साल की उम्र के हैं, हम्म वो बेबी बूमर्स नहीं है, खैर। ये वो ग्रुप है वोटर्स का, यानी एक 30 साल और इससे कम उम्र के वोटर्स, एक इससे ज्यादा उम्र के वोटर्स ऑन एन एवरेज, जी जी। जो कि इसराइल की गैर मशरूत हिमायत के हक में हैं, जो ये समझते हैं कि इसराइल को ये हक और इख्तियार है कि वो जो मर्जी करना चाहे करे, क्योंकि उसको खतरा है, जी। उसके इर्द गिर्द सारे अरब ममालिक हैं जो उसके दुश्मन हैं। तो हम्म। ये ट्रेंड जो है ना, ये अब इस जो 2 साल जंग तकरीबन हो गई है, इसके बाद हमें बहुत वाज़े नजर आना शुरू हो गया है कि यंग वोटर्स जी। इंसानी हकूक की जो रूल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनकी हिमायत करते हैं और वो समझते हैं कि ज्यादती हो रही है। एक ग्रुप वो है जो ये समझता है कि नहीं, इसराइल को अपने दिफा का हक है और उस दिफा के हक में वो जो इकदामात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो ग्रे है, अब अमेरिका ब्लैक एंड वाइट का है। जी जी। दोनों अतराफ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और डटी हुई हैं, और इसकी एक एग्जांपल मैं आपके देखने वालों को देना चाहता हूं। इसकी हम्म एक एग्जांपल है न्यूयॉर्क के मेयर की रेस। हम्म। जोहरान ममदानी, जो जी कि जी। एक मुसलमान हैं, युगांडा में पैदा हुए थे, उनके वालिद इंडिया से थे। जी जी। अ, उन्होंने प्राइमरी जीती है और उन्होंने कहा है कि वो, उनसे सवाल किया गया था कि क्या आप इलेक्ट होकर इसराइल जाएंगे, तो रेस में बाकी जितने लोग थे उन सब ने कहा कि हाँ जी, हम तो पहला ट्रिप इसराइल का करेंगे। हम्म उन्होंने कहा नहीं, मैं इसराइल नहीं जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क का मेयर हूं, मेरी जिम्मेदारी न्यूयॉर्क के लोग हैं, इसराइल के लोग नहीं हैं। हम्म। दूसरा उन्होंने जो बात की जो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, वो उन्होंने ये कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे और मैं न्यूयॉर्क का मेयर हुआ तो मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक रेड वारंट जारी किया हुआ है। जी तो जी। उससे आप देख सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स बदल रही है। न्यूयॉर्क के यंग लोगों ने जोरान ममदानी के लिए वोट किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि जोरान ममदानी ठीक है। आतिफ साहब, वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। वन लास्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा सर कि ये जो अभी प्रोपोज्ड प्लान है, ये क्या आप समझते हैं, कितनी उम्मीद है कि ये मटेरियलाइज हो जाएगा? इसको मटेरियलाइज होना होगा। देखिए, इसमें कतर शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, उर्दन शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, इजिप्ट शामिल था, और दो अमेरिका के अलावा एक और अरब मुल्क भी शामिल था जो कि इंडोनेशिया मेरे, भी। जी, इंडोनेशिया भी शामिल था। तो देखिए, ये एक बड़ी मीटिंग थी। उस बड़ी मीटिंग के अंदर ये 20 नुकाती प्लान जो है, इस पर एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद सदर ट्रंप ने ये एग्रीमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि उनकी मुस्लिम ममालिक के लीडर से बात हुई है। हम्म। हमास इसे कबूल करेगा या नहीं, जाहिर बात है, कतर हमास को कहेगा कि आपको इसे कबूल करना होगा। जी जी। इसराइल इसे कबूल करेगा या नहीं, गुज़िश्ता जो हफ्ता था हमने उसमें देखा कि सदर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, वो मिलकर एक जगह खड़े हुए और सदर ट्रंप ने कहा कि ये प्लान है और ये पीस प्लान है, मैं इसको लीड कर रहा हूँ, मैं इस अथॉरिटी का डायरेक्टर हूँगा और मेरे साथ ये लोग शामिल होंगे। तो इस एजेंडे के ऊपर अब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें अमेरिका ये कह सकता हो कि जी, जब तक ये यरगमाली रिहा नहीं होंगे हम तब तक कोई ऐसा एग्रीमेंट कबूल नहीं करेंगे। ये अमेरिका का एग्रीमेंट है, उसमें बहुत साफ बताया गया है कि यरगमालियों को रिहा करना होगा। जो यरगमाली हमास की हिरासत में मर गए हैं उनकी बाकियात देनी होंगी। फ़लस्तीनी जो कैद में हैं उनको इसराइल को आज़ाद करना होगा। तकरीबन 275 सजाए मौत के कैदी हैं जिनको इसराइल रिहा करेगा, या उम्र कैद के कैदी हैं। इसके अलावा कोई 1,500 के करीब खवातीन और बच्चे हैं जिनको इसराइली जेलों में रखा गया है। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल उनको रिहा करेगा, और हर एक इसराइली जो हलाक हुआ है हमास की कैद में, उसकी बाकियात के बदले इसराइली हुकूमत 15 फ़लस्तीनियों
को जो इसराइल की कैद में कत्ल हुए हैं या हलाक हुए हैं उनको वापस करेगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। फिर ये गारंटीज दी जा रही हैं कि हमास इसराइल पर अटैक नहीं करेगा। तो अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो किसी भी पार्टी के पास कोई जवाब बचता नहीं है, क्योंकि अगर फिर सदर ट्रम्प ने ये भी कहा है कि वो वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो हम्म। अगर इस पर मुकम्मल ईमानदारी से तमाम पार्टियां काम करती हैं और अगर कोई छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो कि आएंगे, ऐसा जी नहीं जी हो सकता कि बिल्कुल एक स्मूथ राइड हो, ये जी। शेकी राइड होगी, रॉकी राइड होगी, लेकिन उनको किस तरह से उनसे निपटा जाएगा, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक अ सेंटर प्लेस इन ऑल ऑफ दिस। और हमें इसी को देखना होगा कि जो ऐसी कुव्वतें जो इसको तबाह करना चाहेंगी, इसको सबोटाज करना चाहेंगी, उनके जो एक्शंस हैं या उनकी जो चालें हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। ये तमाम मुल्क और ये इत्तेहाद उनसे कैसे निपटता है, ये गारंटी देगा इस पीस की। नाज़रीन, आपने मोहम्मद आतिफ साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो अमन माहिदा है इसको मटीरियलाइज होना ही पड़ेगा, इस खून रेजी को रुकना ही होगा। बैनुल अक़वामी बरादरी की भी ये जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको लीड लेना पड़ेगी इस खून रेजी को रोकने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।